ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਿਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਆਸਟੀਅਮ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਟੀਅਮ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਰੀਅਨ ਕਿ ਜਾਪਨੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਆ ਆਸਟੀਅਮ ਦੀ ਕਿਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਡੈਂਟੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਟੀਨ ਵਾਲੀ ਕਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਟੀਅਮ ਦੀ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਰਿਲ ਆ। ਡੈਂਟੀਨ ਦੀ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਰਮੈਨ ਡਰਿਲ ਆ 1, 2, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਕੋਰਟੀਕਲ ਪਲੇਟ ਆਫ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਿਲਸ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ 'ਚ 2.8 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2.5 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ 4.5 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਪਿੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ, ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਟੀਥ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਿੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਥ ਪਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਟੂਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਰਿਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰਮੈਨ ਡਰਿਲ ਆ, ਪਾਇਲਟ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੀਜ਼ਲ ਡਿਸਟਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਕੋਲਿੰਗੁਅਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਡਰਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਿਲਸ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਟੀਅਮ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਰਿਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਬਣਾ ਤੀ ਹੈ ਲੈਂਡਰਮੈਨ 1, 2 ਛੋਟੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵਾਲੀ, ਵੱਡੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਂਟੀਅਮ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਟੋਪਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ RCT ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਸਟੋਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੈਂਟੀਅਮ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਪਰ ਆ, ਇਹ 7 mm 8 mm। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟੀਅਮ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 3.5 mm ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਡਰਿਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਥ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਸਟੋਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਿਲ ਹੀ ਉਸ ਲੈਂਥ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੈਂਥ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੋਪਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੈਚਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟੀਅਮ ਕਿੱਟ ਵਾਲੇ ਰੈਚਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਕ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟੀਅਮ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਟਾਰਕ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਜ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 30, 35, 40 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਟਾਰਕ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਂਡ ਪੀਸ ਫਿਜ਼ੀਓ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਅਤੇ NSK ਦਾ ਹੈਂਡ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ NSK ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਪੀਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ
हैंड कंट्रोल ना करना चाਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਕਰੂ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਚਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟਾਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੋਲਰ ਅਪਰ ਮੋਲਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਜ਼ੋਬਕਲ, ਡਿਸਟੋਬਕਲ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 2 ਰੂਟਸ 3 ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਆ ਨਾ ਕਾਰਟੀਕਲ ਬੋਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਡਰਿਲ ਛੋਟੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਡਰਿਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਲ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਪੈਲੇਟਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੀਜ਼ੋਬਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਰੂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਰਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਟਾਰਕ 0 ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਇਸ ਕੇਸ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਟਾਰਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਰਿਲ ਘੱਟ ਨੰਬਰ, ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ 0.5 ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੀ ਡਰਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਟੀਕਲ ਪਲੇਟ ਆਫ ਬੋਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ D1 D2 ਬੋਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਿਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਪਤਲਾ ਹੀ ਆ, ਟੇਪਰ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਰਟੀਕਲ ਬੋਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਲੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ 3-4 mm ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਟਾਰਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਕੈਪ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਸਕਰੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਕੈਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਕ 35-40 ਨਿਊਟਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਕਟਸ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨ ਗ੍ਰਾਫਟ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। PR ਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਪਲੇਟ ਰਿਚ ਫਾਈਬਰਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਤੇ ਸੂਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਪਲਾंट ਦੀ किट बारे। क्या करते हैं, हम कैनाल को इनलार्ज करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइड कर देते हैं अपने जीपी को जाने के लिए, लेकिन इम्प्लांट में ऐसा नहीं करते। इम्प्लांट के अंदर हमें जो ड्रिल का जो साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा रखना होता है एज कंपेयर टू इम्प्लांट साइज, ताकि वो उसमें जाके बिल्कुल टाइटली फिट हो जाए, उसमें टॉर्क आ जाए, उसके अंदर प्राइमरी स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम अगर बोन हार्ड है तो ही यूज करते हैं, अगर D3 D4 बोन है तो हम इसको यूज नहीं करते, या इमीडिएट आप इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है इस ड्रिल को यूज करने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी की सारी ड्रिल 2 साइज में अगर आप देख सकते हैं, ये लंबी वाली है, ये छोटी वाली है। तो आपको जैसे अगर माउथ ओपनिंग कम है तो इन ड्रिल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन इन ड्रिल्स का क्या घाटा है, इस पे स्टॉपर यूज नहीं हो पाएगा। तो मेरे जो मैक्सिमम केसेस हैं वो मैं विद स्टॉपर इन्हीं के साथ यूज करता हूँ। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इम्प्लांट है एडजेसेंट टीथ्स के कारण अड़ रहा है और आपकी ड्रिल राइट वर्किंग लेंथ तक नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे कि ये ड्रिल एक्सटेंशन यूज करेंगे। ये इसके अंदर जाएगी और ये ऐसे अब आपकी ड्रिल की जो लेंथ है वो एक्चुअली लंबी हो गई। नेक्स्ट ये हमारी जो चीज है, ये हैंड ड्राइवर है। ये जैसे कवर स्क्रू, हीलिंग कैप या अबटमेंट का स्क्रू को टाइट या खोलने के लिए काम आता है। ये हैंड से हम यूज कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट 2 ये जो आप देख रहे हैं, ये हैंड पीस में लगने वाले इम्प्लांट ड्राइवर है। ये इम्प्लांट ड्राइवर मतलब कि इम्प्लांट जब उनकी डब्बी में से खोलोगे तो पहले इससे पिक करना है, देन यू हैव टू प्लेस इट इन माउथ। अगर आप इम्प्लांट हैंड से प्लेस करना चाहते हैं फॉर बेटर कंट्रोल, तो आपको ये वाला रैचेट ड्राइवर वाला जो इम्प्लांट का कैरियर है ये यूज करना पड़ेगा।
दोस्तों ये हमारा जो है, ये हमारा रेचेट है। अब ये विदाउट टॉर्क है, हम इसमें टॉर्क मेजर नहीं कर सकते हैं। तो पर्सनली आई डोंट लाइक टू यूज इट। ये पहले से किट में देते थे तो वो अभी है हमारे पास। तो इसकी जगह हम कौन सा यूज करेंगे, टॉर्क रेचेट। ये एक्स्ट्रा आता है किट के साथ। इसमें क्या है कि हम इम्प्लांट की टॉर्क चेक कर सकते हैं, वो कितना उसके अंदर टॉर्क की वैल्यू है, उसी के से हम प्राइमरी स्टेबिलिटी का भी अंदाजा लगाते हैं। इसका घाटा क्या है कि जो ये स्क्रू है ये खो जाता है, ऐसे घूमता है रहता है और ये निकल के गिर जाता है कई बार माउथ के अंदर। मेरा भी खो चुका है, मेरे फ्रेंड का भी खो चुका है। तो आई थिंक ये इस चीज के ऊपर वर्क करना चाहिए डेंटियम कंपनी को। नेक्स्ट क्या है, ये डेप्थ गेज है। आप इसको जब आपने ड्रिल आउट कर लिया तो आप इससे डेप्थ भी चेक कर सकते हैं, और उस जो होल है, ड्रिलिंग होल है बोन के अंदर, उसको ये भी चेक कर सकते हैं कहीं से सॉफ्ट तो नहीं है, कहीं से परफोरेशन तो नहीं है। वो इस इंस्ट्रूमेंट से आप चेक कर सकते हैं। इसे डेप्थ गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये रेचेट ड्राइवर है। जब आप हमें फाइनल टॉर्क देना होता है अपार्टमेंट स्क्रू को, या आप हीलिंग कैप को टॉर्क देना चाहते हैं, कवर स्क्रू को टॉर्क देना चाहते हैं, तो इसकी मदद से करेंगे। ये इसके इन सब से रेचेट के साथ फिट हो जाता है, एंड देन यू कैन यूज इट। फ्रेंड्स, ओवरऑल ओवरव्यू तो मैंने आपको इस किट का दे दिया है। अब मेरे पास एक ये डमी मॉडल है, तो देख लेते हैं इन किट को हम कैसे यूज करते हैं। तो हम सपोज इसमें ऑलरेडी मैंने होल कर रखे हैं, तो हमारे पास और तो कुछ नहीं है। हम सपोज इमीडिएट इम्प्लांट डालेंगे इसके अंदर। अब ये इंटरडेंटल बोन कितनी ब्यूटीफुली आपको दिख रही है, माउथ में ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है। तो इस मॉडल को देख के गलत मत सोच लेना। तो हमारा क्या जो ट्रीटमेंट प्लान क्या है कि हम इस इंटरडेंटल बोन को यूज करेंगे और यहाँ पे हम इम्प्लांट प्लेस करने वाले हैं। प्लांट के अंदर मेरे पास ये है कि फेल्ड इम्प्लांट पड़ा हुआ है, मेरा कभी फेल हो गया होगा, तो इसको यूज करेंगे हम। ये भी ब्लू कलर का है, तो ये 4.5 डायमीटर का है। लेंथ तो मुझे याद नहीं इसकी क्या होगी, लेकिन डाल के देखते हैं कि कैसे हम काम करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पास फिजियो डिस्पेंसर है एनएसके कंपनी का, और ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है जब आप इम्प्लांटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। वैसे इम्प्लांट कंपनी इसको कुछ टाइम के लिए आपको रेंट भी दे सकती है, लेकिन अपना हो तो बेहतर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने 4.5 mm आरबीजी या सीबीसीटी के साथ प्लान किया है, तो हम स्टार्टिंग के अंदर 8 mm का ड्रिल करेंगे। ये मैंने ड्रिल को लगा लिया है। इसके साथ 8 mm का स्टॉपर लगा लेते हैं हम इस तरीके से, और पहले हम 8 mm ड्रिल करेंगे एंड वी विल टेक आरबीजी कि हम साइनस वॉल से दूर हैं या नहीं है। फिर उसके बाद हम अगर दूर होंगे तो 10 mm ड्रिल कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा स्टार्टिंग में अगर ऐसा ही केस है, तो हो सकता है मेरी जो ड्रिल है वो इधर स्लिप करे। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको ध्यान रखना, आपकी स्लिप नहीं होने देनी। तो ऐसे ही बिल्कुल एकदम से ही चली जाती है। जब कॉर्टिकल बोन एकदम से ट्रिम होती है तो एकदम से ही ड्रिल अंदर घुस जाती है। तो कॉर्टिकल बोन ट्रिम हुई और एकदम से अंदर घुस गया। अब मेरे स्टॉपर ने मेरी ये ड्रिल को और ज्यादा अंदर जाने से रोक लिया। नाउ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, या तो मैं यही ड्रिल अंदर डाल के एक्सरे ले लूंगा इस तरीके से, या फिर मैं अपनी पाथ पिल भी डाल के एक्सरे ले सकता हूं। लेकिन पाथ पिल में डालने से एक्सरे लेने की बजाय मैं ड्रिल ही डाल के एक्सरे लेना इसलिए चाहता हूं, तो मेरे को ये पता लग जाता है ये कितने mm अंदर है और मेरे पास रिमेनिंग बोन कितनी बची हुई है। तो इसको निकाल लेते हैं। सपोज मैंने एक्सरे ले लिया और मुझे लगता है कि 2 mm की अभी और गुंजाइश है, हम एक्स्ट्रा जा सकते हैं। तो मैं अब इसके अंदर 10 mm का स्टॉपर लगाऊंगा और फिर कर लूंगा। अभी फिलहाल मेरे दूसरी किट के अंदर स्टॉपर्स पड़े हुए हैं, अभी नहीं अवेलेबल है, तो मैं इसको 10 mm यानी मेरी जहां पे ये ग्रे की लाइन स्टार्ट हो रही है मैं वहां तक इसको ड्रिल करूंगा। एक्चुअली में ये जो डेंटियम इम्प्लांट है, ये आपको 10 mm का इम्प्लांट डालना है, तो 1 mm एक्स्ट्रा ड्रिल करना होता है ताकि आप इसको 1 mm सब कॉर्टिकल लेके जा सको।
अब ये मैंने 10 mm का ड्रिल कर दिया है। अब मेरी सेकंड लिंटरमैन ड्रिल आएगी। अब अगेन इसको 10 mm के लिए मैं 11 mm करूंगा ड्रिल। अब ये मेरी 3.6 mm की ड्रिल है। अब मैं अगेन इसको भी 11 mm ड्रिल करूंगा। अब मेरी 3.6 के बाद 4.0 की mm वाली ड्रिल आएगी। अगेन इसको भी मैं 10 mm ड्रिल करूंगा। अब माउथ के अंदर भी ऐसे ही अगर ये बोन नहीं होती तो यहां से ट्रिम हो जाती है, टूट जाती है। अब मैं लास्ट अपनी 4.5 mm की ड्रिल करूंगा। अब ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरी जो माउथ में भी ऐसे ही होता है, किसी एक रूट टिप की टूवर्ड्स वो मिल जाती है और वहीं पे सॉकेट में हो जाता है। तो ज़्यादातर ये पैलेटल में मिलती है माउथ के अंदर, तो लेकिन यहाँ पे हमारी मीजोबक्कल रूट के अंदर ये मिल गया है। लास्ट में एक्चुअल में अगर ये माउथ में होता तो मेरे को ये कॉर्टिकल ड्रिल यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपर मैक्सिला में अच्छी बोन क्वालिटी नहीं होती और हम इमीडिएट केस कर रहे हैं तो भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये मॉडल है, यहाँ पे कोई ये इसकी एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये मेरे को यूज करना पड़ेगा इम्प्लांट प्लेस करने के लिए। बस इतना, दैट्स इट। तो आपने देखा कि हमने जो ड्रिल है वो जस्ट एक बार अंदर डालनी है, बाहर लेके आनी है। हमने उसकी तरह सरकमफ्रेंशियल फाइलिंग नहीं करनी है आरसीटी की तरह। तो अब मैं अपना इम्प्लांट को पिक करने के लिए मेरे पास इसका ड्राइवर है। अब मैं यहाँ पे अपनी जो स्पीड है, पहले मेरी 1400 थी, अब मैं इसको डिक्रीज करके 35 कर दूंगा। जो टॉर्क है वो मैं 30 टॉर्क रखूंगा। चलो 25 टॉर्क रख लेते। फिर उसके बाद मैं अपना इम्प्लांट खोलूंगा। मेरा जो असिस्टेंट है वो इसको यहाँ से ऐसे खोलता है और इसको ड्रॉप कर देता है, इसको छूता नहीं है। फिर मैं इसको ऐसे उठाऊंगा, इसको खोलूंगा और अब मेरा जो ये इम्प्लांट है ये मेरे सामने है एंड ये इसके अंदर डालूंगा और ये कट की आवाज़ आएगी, यानी अब ये एंगेज हो गया है। अब ये इम्प्लांट मैंने ऐसे पिक कर लेना है और ये अब मैं डालूंगा। ये जा रहा है। सपोज ये यहाँ पे जाके रुक गया, 30 टॉर्क मेरी रीच हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपना ये टॉर्क रेचेट ड्राइवर, इम्प्लांट ड्राइवर लूंगा। अपना डालूंगा। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स का है, तो मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अब मैं डालूंगा और मैं देखूंगा कि ये कितना टॉर्क मेरे पास आ रहा है। It's not working. मेरा इम्प्लांट बिल्कुल फ्री है, इट्स हैज नो टॉर्क। आइडियली इसके अंदर टॉर्क आना चाहिए था, 35 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन अब मेरा सॉकेट बड़ा है क्योंकि इसके अंदर इमीडिएट प्लेसमेंट है, तो इस वजह से मेरे को कोई टॉर्क नहीं मिल रही है। नहीं तो ये यहाँ पे 40-50 टॉर्क मेरे को मिलती। अब नहीं मिल रही तो भी आपको कोई वर्री करने की जरूरत नहीं है, अगर एक्चुअल पेशेंट है तो। ये अब हम क्या करेंगे, अगर इमीडिएट केस है तो इसके अंदर जिंजाइवा इतना फ्री नहीं होगा कि मैं इस पूरे सॉकेट को क्लोज कर सकूं बाय जिंजाइवा। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक हीलिंग कैप लगाऊंगा।
अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसे कहते हैं कवर स्क्रू। इसे कहते हैं कवर स्क्रू। मैं इसके अंदर ये ऐसे पिक करूंगा और इसके अंदर एंड आई विल क्लोज। अगर मेरे को कोई टॉर्क नहीं है मेरे पास और मुझको कोई ग्राफ्टिंग वाला केस है तो मैं इसको पूरा क्लोज करके और इसको क्लोज कर दूंगा। टॉर्क का मतलब मेरे पास प्राइमरी स्टेबिलिटी कम है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास प्राइमरी स्टेबिलिटी अच्छी है, देन मैं हीलिंग कवर कैप यूज करूंगा और इसको ऐसे लगा के देन आई विल क्लोज द सॉकेट, और बाकी सारी जगह के जो भी खाली एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे मैं बोन ग्राफ्ट डाल दूंगा। फ्रेंड्स, इस इम्प्लांट के डेमो के अंदर, सर्जिकल किट के अंदर बस इतना ही। आशा करता हूं तो कि इस किट के अंदर की कुछ विशेष बातें आपको बता पाया हूँ। वैसे जैसे मेरे पास ये ऑस्टियम किट है, नोबल की है, एडिन की है, ऑलमोस्ट सारी जो किट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम वर्क करती हैं। कुछ ड्रिल्स का सीक्वेंस होगा जो आपको फॉलो करना है, आपकी प्लानिंग होगी जिसमें आप इम्प्लांट डायमीटर और लेंथ को डिसाइड करोगे, और जो भी आपका मैन्युफैक्चर के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना। कुछ मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन कुछ कहते हैं, और इवन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। जैसे ये सुपर लाइन इम्प्लांट है डेंटियम कंपनी का, इन्हीं का एनआर लाइन होगा तो डिफरेंट हो सकती है, और अगर स्लिम लाइन होगा तो वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो वो कंपनी टू कंपनी भी वेरी करेंगी इंस्ट्रक्शंस, और आपका जो बोन टू बोन भी वेरी करेंगी। और जो भी ये प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ये जरूरी नहीं है आपको बोन के अंदर एक्चुअल पेशेंट के अंदर सेम सिनेरियो मिले। कई बार हमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो जैसे जैसे आप इम्प्लांट सीखेंगे ये सारी बातें क्लियर होती चलेंगी। और अगर आपको इम्प्लांट सीखना है तो आप जानते हैं कहाँ आना है, जीडीएस डेंटल एकेडमी में आना है। बिल्कुल इसी तरीके से आसान शब्दों के अंदर आपको पहले इम्प्लांट सिखाएंगे, फिर पेशेंट पे कराएंगे, और फिर आप अपने पेशेंट्स में डाल के बहुत मूड भी कमाओगे। Thank you very much. Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.